Shami pitched outside the off stump. And the ball coming in and cleaning him up. The first wicket for India. आइए हेल्पलाइन फॉर ब्लाइंड 1800-5320469. Comeback by Mohammad Shami. This happens when you bowl a consistent line, the kind of movement he wanted. The ball pitched and moved inside. It was an in cutter for the left-hander. And the way it came in, so impressive. Did you enjoy that, Sunil? वाकई बहुत ही उम्दा जो गेंद कही जानी चाहिए उस तरह की गेंद की थी मोहम्मद शमी ने. और ऐसी गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है. वो भी अराउंड द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे थे. अराउंड द विकेट गेंद को अंदर लाना इतना आसान नहीं होता. और उस कंट्रोल के साथ और जिस दिशा पर और जिस टप्पे पर गेंद को उन्होंने रखा और टप्पे पर पड़ने के बाद जो गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस कर दिया. और गेंद की गति भी काफी तेज थी जिसकी वजह से हक्के बक्के भौचक्के रह गए. वहां पर बर्थडे बॉय रॉरी बर्न्स, आज उनका जन्मदिन है रॉरी बर्न्स का, लेकिन अपनी इस पारी को वो आगे नहीं बढ़ा पाए और 61 रनों का ही वो योगदान दे सके. लेकिन भरपूर तारीफ करनी होगी मुनीश रॉरी बर्न्स की. जो एक प्रेशर था, एक दबाव था अच्छी शुरुआत देने का, उस दबाव से उबरते हुए उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को दी. At the moment, I would like to give full marks to Mohammad Shami. Sunil, just don't take it away because the kind of delivery he bowled, pitching outside the off stump, and the ball cutting in, and not a slide cut, but cutting in just like a spinner, and that was a spectacular moment for all of us. And Mohammad Shami getting the first wicket for India. Rory Burns out for 61. That's his first half century in the series. He's got an 18 and 49 in the previous test matches, apart from the 2 ducks that he scored. We'll be very happy that he got to 61, but then we'll be also disappointed. Maybe he wanted to score more, and the opening batsmen do not get satisfied after just scoring a half century, but they tend to reach to the triple figure mark also. But then 153 ball stay for Rory Burns comes to an end, and Mohammad Shami, I tell you what, one of the spectacular deliveries, the last delivery of the 50th over, and what a moment it was. 135 for 1, overcast condition. Jasprit Bumrah comes in, 2 slips and a wide gully, point. Extra cover, mid-on, short mid-wicket and a fine leg as he comes in, striding hard and comes and bowls to Haseeb Hameed, short of length delivery and just dabbing the ball down to the point fielder. 133 kilometer an hour delivery. And speaking about Mohammad Shami, the best part was that he kept on bowling a tight line, the short of length line, coming around the wicket to Rory Burns, and then used the crease, went wide of the crease and then got that ball inside. What a delivery, and I'm sure he'll cherish that for a long, long time. And this is the moment, Sunil. He's got the right rhythm now. He's got the movement also. And I reckon that if he continues like this, you never know what can happen just now. At the moment, Bumrah comes in, charging hard, short of length delivery. Haseeb Hameed then on to the back foot and just dabs the ball down to the bowler. 135 for 1. Now, the best part of the Indian bowling since the morning today, which of course is morning in England, it's afternoon here in India, but then the best part has been the consistent line. They've been disciplined, and I would say that full marks to the coach Ravi Shastri also. Maybe he's contributed a bit, but then the batsman who's walked in is David Malan. 16 matches, 27 innings. Of course, he's known to be a specialist, wide ball cricket batsman. But then a big moment for him, getting an opportunity to play in the test match after almost 3 years. But he's at the non-strikers end as Jasprit Bumrah comes in and bowls a delivery short of length and then moving away from the off stump. A good delivery to beat Hameed outside the off stump. He's batting on 66. Of course, he's faced 153 deliveries also. But then what a moment it was. All that you need is a small spark to create that fire. Will the Indian bowlers be able to create that fire? Bumrah comes in and brings the ball in. Oh, it's all happening there. And believe my excitement, a ball pitching outside the off stump, short of length, and then coming into the right-handed Haseeb Hameed. And I tell you what, the ball missed the stumps by a whisker. I know it, all the players standing there, the slip cordon knew it. And what a delivery it was. This is the moment, the Duke's ball with which the test series would be played in England is moving now. It's doing that, as Sunil calls it, it's doing that harkat on the field. And this is a spectacular view. 2 more deliveries to come in this over. England leading by 57 runs, but then Jasprit Bumrah attacking hard now, charging hard towards the wicket, comes and bowls a delivery. This was slightly uppish in length, and onto the front foot was Hameed.
plays it defensively to Jasprit Bumrah. और मुनीश, हरकत की बात आपने की तो मैं ये भी कहता हूं कि गेंदबाज की बरकत तभी होगी जब गेंद हरकत करेगी. Absolutely, and this is the kind of wicket the fast bowlers would cherish to bowl on. There was a time when the fast bowlers in India did complain about the wickets that was prepared for them in India, but then you got some supporting wickets in India. You go down to England and the fast bowlers cherish bowling there. The weather conditions, the pitch conditions do favor the fast bowlers. As Jasprit Bumrah comes in and bowls a delivery, straight delivery, short of length, and then leaning towards the line of the ball was Hamid and guides the ball down to the square leg area for a single. And that brings us to the end of this over. England at the moment 136 for the loss of 1 wicket, and that's also the end of Jasprit Bumrah's 13th over. 5 maidens, 20 runs. In fact, 21 runs and yet to pick up a wicket here. And this, of course, will be a moment. Both Shami and Bumrah getting that movement of the wicket, and they will definitely trouble the English batsmen. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. और भारतीय गेंदबाज भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये जो सुबह का सेशन है, ये जो पहला सेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इस समय चूंकि मौसम भी ठंडा है और पिच पर भी हल्की सी नमी अवश्य होगी, लेकिन यदि सही इलाकों में आप गेंदबाजी करेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा. और लीड्स हेडिंगले में हमेशा जो पहला सेशन होता है वो गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होता है, सीम बोलर्स के लिए. तो यहां पर उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सटीक और अचूक गेंदबाजी करने की जरूरत है. और वैसी ही गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों छोर से मोहम्मद शमी भी और जसप्रीत बुमराह भी. तो जिस विकेट की तलाश थी, जो विकेट चाहिए था, जो खुराक चाहिए थी, टॉनिक चाहिए थी, वो विकेट की टॉनिक भारत के गेंदबाजों को मिल गई है. ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, 135 रन लेकिन उसके लिए खर्च करने पड़े पहला विकेट हासिल करने के लिए. रॉरी बर्न्स को क्लीन बोल्ड किया मोहम्मद शमी ने. एक बहुत ही खूबसूरत अंदर आती हुई गेंद को, जिसे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए, परख नहीं पाए, गेंद की लाइन पूरी तरह से मिस की और साफ बोल्ड आउट हुए थे रॉरी बर्न्स 61 रन बनाकर. और जो नए बैट्समैन आए हैं वो है दाविद मलान, यॉर्कशायर के ही स्थानीय खिलाड़ी हैं. लेकिन दूसरे छोर पर हमीद 156 गेंदें अब तक खेल चुके हैं, 67 पे नाबाद हैं. हसीब हमीद के लिए 2 स्लिप है, पॉइंट कवर और एक सिली मिड ऑफ पर फील्डर है. ओ, ये गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी और उसे खेला पॉइंट की तरफ, लेकिन सीधे फील्डर के पास मोहम्मद सिराज ने गेंद को फील्ड किया और वापस कर रहे हैं मोहम्मद शमी को. क्या उम्दा गेंद की थी मोहम्मद शमी ने. पिछले ओवर की जो विकेट हासिल की थी रॉरी बर्न्स की, क्रीज का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया था. पिछली जो गेंद की थी थोड़ी सी स्टंप्स के नजदीक से की थी, लेकिन जिस गेंद पर विकेट हासिल किया वो विकेट से स्टंप से दूर हटकर और एंगल बनाकर बहुत ही बढ़िया नबी तुली सटीक गेंद थी. और अब ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं वो दाहिने हाथ के बैट्समैन हमीद को. और अंदर की तरफ आती हुई गेंद, और हमीद काफी नजदीकी नजर रख रहे हैं हर गेंद पर और अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक हर गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे हैं. एक जीवनदान अवश्य मिला था हसीब हमीद को कल, जिस पर रोहित शर्मा उनका कैच दूसरी स्लिप में नहीं पकड़ पाए थे और उस की वजह से चौका भी मिला था और अर्धशतक भी पूरा हुआ था हसीब हमीद का. सामना कर रहे हैं मोहम्मद शमी का. 16वां ओवर है. शमी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. अगली गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, गेंद के ठीक पीछे आकर उसे ब्लॉक किया, रक्षात्मक ढंग से खेला ऑन साइड में. मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया और गेंद वापस आ रही है मोहम्मद शमी के पास. मोहम्मद शमी विकेट की खुराक मिलने के बाद उनकी जो रफ्तार है उसमें भी इजाफा हो गया है. 140 से ऊपर की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और यही फर्क होता है जो बात कर रहे थे मुनीश मेरे लिए कि जो गेंद हरकत जब करती है और बरकत होती है गेंदबाज की तो उसके हौसले बुलंद होते हैं, दुगने उत्साह के साथ वो गेंदबाजी करने लगता है. इस बीच अगली गेंद, और इस बार थोड़ी धीमी गेंद की थी परिवर्तन के तौर पर और कटकर अंदर की तरफ आई. 135 की वो गेंद थी, पिछली गेंद 142 की थी और गेंद कटकर अंदर की तरफ आई. लेकिन चूंकि हसीब हमीद की आंखें जम चुकी हैं, उन्होंने बिल्कुल बैट और पैड अपना साथ में जोड़े रखा और गेंद को आने दिया. गेंद बैट और पैड से लगी लेकिन कोई नुकसान नहीं और गेंद वापस मोहम्मद शमी के पास आ रही है. तो अब दाविद मलान साथ देने के लिए आए हैं हसीब हमीद का. हमीद सामना कर रहे हैं मोहम्मद शमी का. 58 रनों की बढ़त जमा हो चुकी है.
अगली गेंद और इस बार यॉर्क कराने की कोशिश थी, आगे की तरफ गेंद को पिच कराया था और उसे ड्राइव करूं या ब्लॉक करूं, इस दोहरी मानसिकता में रहे हसीब हमीद, लेकिन उन्होंने फिर उसको ब्लॉक करना ही मुनासिब समझा और सही किया। गेंद पहले टप्पे पर, वहां पर जो सिली मिड ऑफ पर फील्डर है उसके पास गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं। जो रूट ड्रेसिंग रूम में अपनी बारी के इंतजार में इस समय काफी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि उनकी टीम बहुत ही सुखद स्थिति में है। अगली गेंद शमी की और इस बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर और अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे रक्षात्मक ढंग से खेला। ओवर की समाप्ति हुई तो इंग्लैंड ने आज अपना पहला विकेट 135 के कुल योग पर खोया। रॉडी बर्न्स को अपने पिछले ओवर में मोहम्मद शमी ने साफ बोल्ड आउट किया था, बहुत ही खूबसूरत उम्दा गेंद पर, और 61 रनों का योगदान दिया था रॉडी बर्न्स ने। और इस बीच हमारे जो सांख्यिकी विशेषज्ञ हैं ईशाउद्दीन, वो बता रहे हैं कि ये जो साझेदारी हुई थी रॉडी बर्न्स और हसीब हमीद के बीच में, वो भारत के खिलाफ हेडिंग्ले में इंग्लैंड की पहले विकेट के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। इससे पहले 146 की साझेदारी हुई थी जॉफ पुलर और गिलबर्ट पार्कहाउस के बीच में 1959 में हेडिंग्ले के इसी मैदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया ईशाउद्दीन। तो लेकिन इस साझेदारी ने काम बहुत पुख्ता मजबूत कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और अब फील्डिंग काफी आक्रामक है। नए बल्लेबाज दाविद मलान पर दबाव बनाने की कोशिश, 3 स्लिप गली पॉइंट कवर इस फील्डिंग की जमावट के साथ। जसप्रीत बुमराह दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और नए बैट्समैन ये गेंद और गेंद के ठीक पीछे नहीं आ पाए। गेंद बल्ले के थोड़े ऊपरी मोटे हिस्से से लगकर गई पॉइंट की तरफ, लेकिन सीधे फील्डर के पास रन लेने का अवसर नहीं। तो दाविद मलान बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 33 साल के हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज दाविद मलान, और पिछले 2 वर्षों से इंग्लैंड की जो T20 टीम है उसके नियमित और प्रमुख सदस्य हैं दाविद मलान। उनके बारे में हम और चर्चा करेंगे इस गेंद के बाद। बुमराह, अगली गेंद दाविद मलान को ओवर द विकेट और इस बार थोड़ी सी नीचे रही, ऑफ और मिडिल स्टंप पर थी। गेंद के आने का इंतजार किया और उसे दबा दिया वहीं पर। जैसे ही गेंद उठी कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 136 एक विकेट पर। दाविद मलान की बात हम कर रहे थे कि वो T20 इंग्लैंड टीम के नियमित सदस्य हैं और 2018 में भारत के ही विरुद्ध इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज में वो खेले थे। और टेस्ट में वैसे उनका जो रिकॉर्ड है, जो प्रदर्शन है, साधारण ही रहा है। 15 मैचेस में 27.84 की औसत से ही रन बना पाए हैं टेस्ट क्रिकेट में दाविद मलान। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। ऑन साइड में एक मिड ऑन है और ये गेंद काफी उस गेंद पर मूवमेंट देखने को मिला और उछाल भी अच्छा खासा हासिल किया जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। छोड़ने में कोई दिक्कत या दुश्वारी नहीं हुई वहां पर दाविद मलान को। तो दाविद मलान जून में मुनीश ससेक्स के खिलाफ यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए 199 रनों की पारी दाविद मलान ने खेली थी और उसी वजह से मुझे लगता है कि उनका एक नाम उभर कर आया इंग्लैंड की इस प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार बुमराह की, दाविद मलान, और इस बार भी अंदर की तरफ ये ऑफ और मिडिल स्टंप पर गेंद थी। थोड़ी सी शॉर्ट अप लेंथ, गेंद के आने का इंतजार किया और बीचों बीच लेकर उसे खेल दिया दाविद मलान ने। लेकिन मलान को यहाँ पर उनके चरित्र की, उनके स्वभाव की परीक्षा होगी क्योंकि वो मूलतः आक्रामक बल्लेबाज हैं, छोटे फॉर्मेट में ज्यादा खेलते हैं T20 वनडे में, और यहाँ पर जरूरत होती है संयम की, धैर्य की, एकाग्रता की। शॉट सिलेक्शन को लेकर आपको खासा चौकन्ना रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। अगली गेंद करने के लिए तैयार हैं जसप्रीत बुमराह और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और ऑन दी आप उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती से गैप में खेल दिया है। पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर, बेहतरीन चौका, और ये लगा न्यूज ऑन AIR चौका। बेहतरीन ड्राइव के साथ अपने खाते की शुरुआत की है, रन बनाने के सिलसिले को शुरू किया है। ऑन दी आप उसे मार दिया था, पॉइंट और कवर के बीच में से बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर को गेंद के नजदीक पहुंचने का, और बढ़िया अपने पैर का, कदमों का इस्तेमाल किया। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है और उठ रही है, उस गेंद को उस उठने के साथ ही गैप में खेल दिया था। जो रूट ने भी ड्रेसिंग रूम से ताली बजाकर
हौसला अफजाई की, अभिवादन किया दाविद मलान का। तो दाविद मलान का खाता खुला उस बेहतरीन चौके के साथ। इस ओवर की अंतिम गेंद बुमराह की, और अब एंगल बदला है, राउंड द विकेट गेंद करने के लिए आए हैं, लेकिन उस गेंद को छोड़ दिया। ओवर की समाप्ति हुई 53 ओवर के बाद। इंग्लैंड का स्कोर 140 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और दाविद मलान की बात हम कर रहे थे मुनीश, मुझे लगता है कि इंग्लैंड को इस श्रृंखला के बाद एशेज खेलना है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, तो उस बात को जहन में रखते हुए भी दाविद मलान को शामिल किया गया होगा, क्योंकि पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे में मलान ने इंग्लैंड के लिए 42.55 की औसत से रन बनाए थे और पर्थ में शानदार शतक जड़ा था। तो इस बात को भी जहन में रखते हुए दाविद मलान को मौका देना चाहती है इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इस परीक्षा के बाद एक और कड़ी परीक्षा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी होगी एशेज सीरीज में। बहरहाल अब नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद शमी। अंदर की तरफ गेंद, पहले ओवर की नए ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बैट्समैन हमीद को ऑफर मिडिल स्टंप पर थी और उसे पीछे आकर रक्षात्मक ढंग से खेला। हमीद ने भरपूर धैर्य का और एकाग्रता का परिचय दिया है। 163 गेंदें खेली हैं, 67 रन अब तक बना चुके हैं, जिसमें उनके कितने चौके हैं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, 12 चौके अब तक लगा चुके हैं। धन्यवाद रजित सिन्हा हमारे स्कोरर। अगली गेंद शमी की, और इस बार सीधी गेंद थी, लेकिन काफी नजदीकी नजर रखते हुए गेंद पर हसीब हमीद। मोहम्मद शमी विकेट की खुराक मिलने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस, विश्वास झलक रहा है उनके चेहरे पर, और ये होता ही है, ये स्वाभाविक भी है। गेंदबाज को जब विकेट मिलता है, विकेट की खुराक मिलती है, वो टॉनिक मिलता है, तो उसका चेहरा खिल जाता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास जग जाता है। 17वां ओवर अपना कर रहे हैं मोहम्मद शमी। 43 रन देकर 1 विकेट अब तक हासिल किया है, बिल्कुल। और ये पटकी हुई गेंद, लेकिन उसे बहुत जल्दी पढ़ लिया था, देख लिया था, और जैसे ही गेंद को शॉट किया, पटका, अपना सिर नीचे किया हसे हमीद ने और जाने दिया गेंद को अपने सर के ऊपर से विकेटकीपर ऋषभ पंत के लिए। तो ये जो पहला सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेशन में ही भारत वापसी कर सकता है, यदि वापसी करने की कोई कोशिश है, क्योंकि ये सेशन यदि एक हाथ विकेट ही रहा तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी नहीं इंग्लैंड की। इस बीच अगली गेंद, और इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर थी गेंद, बल्ले की भीतरी किनारे से लगकर गई स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करें, जडेजा थ्रो करें, 1 रन आसानी के साथ हमीद और इंग्लैंड को मिलता हुआ। हमीद अब पहुंच चुके हैं 68 पर, और इंग्लैंड का स्कोर 141 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये जो पहला सेशन है यही एक अच्छा अवसर है भारत को वापसी करने का। इस सेशन में अभी लगभग 1 घंटे का खेल होने को आया है, 1 घंटे का खेल और होगा। इस बचे हुए समय में यदि 2-3 विकेट और ले लेती है भारतीय टीम, तब अवसर बन सकते हैं इस मैच में वापसी करने के भारत के पास, क्योंकि लीड अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 63 रनों की ही है। और भारत को अब वास्तविकता तो यह है कि हर सेशन में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, हर सेशन को जीतना होगा इंग्लैंड के खिलाफ। इस बीच अगली गेंद, और राउंड द विकेट, क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को फिर से अंदर लाने की कोशिश थी, और ये देखते हुए कि मलान भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो कोशिश, जो एफर्ट उन्होंने रॉरी बर्न्स के खिलाफ किया था, वही एफर्ट वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राउंड द विकेट गेंद करके वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को वो अंदर की तरफ लाएं और बीट करें दाविद मलान के बल्ले को। मलान लंबे ऊंचे कद के तगड़े खिलाड़ी हैं। अगली गेंद मोहम्मद शमी की, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार आगे की तरफ गेंद को पिच कराया था। ड्राइव करने जा रहे थे दाविद मलान, गेंद की पिच पर नहीं थे और शरीर से काफी दूर भी वो स्ट्रोक खेला था, लेकिन कोई नुकसान नहीं। बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई। मोहम्मद शमी के मेडन ओवर रहा, 1 रन आया, माफ कीजिएगा, इस ओवर में, लेकिन बेहतरीन ओवर उन्होंने किया। और ये अच्छी बात है कि बाएं हाथ का जो बैट्समैन है उसे परेशान करने में कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद शमी। यही उन्होंने रॉरी बर्न्स के साथ किया था, और वही कोशिश अब उनकी
दाविद मलान के खिलाफ भी जारी है। मुनीश। Well, then England now finding it difficult to score freely the way it was in the last session yesterday. The sun was out, the wicket dried up, but this is a different story altogether. Overcast conditions, the Indian bowlers, even if the ball is now 54 overs old, the Indian bowlers have tried to bowl a decent line. They're getting the movement off the wicket, and of course the bowlers